Good morning, dear student. Once again, you are welcome back in this online class of English class 8th. Today, we are going to discuss chapter number 4, The Last Bargain. This is the poem which is included in your syllabus, UT syllabus. So, that's why this is very important. So, let us discuss about this poem. यह पोएम द लास्ट बार्गेन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में इंक्लूडेड है। जैसा कि आपका सिलेबस जो आया है रिसेंटली उसमें भी ये इंक्लूडेड है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं डिस्कस कर दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस पोएम को भरपूर समझने का प्रयास करें। सो लेट अस बी स्टार्ट। कम एंड हायर मी, I cried while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But this power counted for naught, and he went away in his chariot. So this is your first stanza. But before continuing this one, you must have knowledge about the poet who has actually composed such a beautiful poem. So this is the beautiful poem, The Last Bargain, is composed by Ravindranath Thakur, which is very famous poem, and he is also very famous poet, Bengali poet, and he has composed so many poems like Gitanjali, and he was also awarded Nobel Prize for Literature for his famous, world famous writing Gitanjali. So let us begin. Come and hire me, I carried while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. So here, there was a man who was in the search of job, but condition was that he did not want to lose his freedom. He cannot compromise by losing his freedom. तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे एक जॉब की तलाश थी, लेकिन वह किसी भी कीमत पर ऐसी जॉब नहीं करना चाहता था जहाँ पे उसके आज़ादी का हनन हो। वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखकर जॉब करना चाहता था। तो क्या उसे ऐसा कोई जॉब ऑफर हुआ जिसमें उसकी आज़ादी का हनन न हो? सो हेयर इन दिस फर्स्ट स्टैंजा, when he was moving here and there to search out for a job, then come and hire me I carried while in the morning. तो वह जो है सुबह सुबह जॉब की तलाश में निकला और सभी लोगों से कहता था, आप मुझे जॉब पर रख लो, मुझे हायर कर लो। हायर मीन्स होता है पैसे के बदले किसी को जो है जॉब ऑफर करना या काम कराना। So come and hire me, he cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. जैसे वह जो है उस सकरी गलियों में, पत्थर से बनी हुई गलियों में, सड़कों पर वह जो घूम रहा था, बेरोजगार था, उसे जॉब की तलाश थी, उसी समय A king was coming in his chariot. उसी समय एक राजा अपने चैरियट मीन्स होता है रथ, तो अपने रथ में जो है वह सवार होकर आता है। And by holding his hand he said, I will hire you with my power. And he said, I wanted to hire you with my power, with my sword, with my power. और उसने कहा
मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ, मैं अपने पावर से तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। बट दिस पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। बट his offer was useless because the person did not accept his proposal of job of hiring, because in this job he was not free, he was not in the position to enjoy the freedom. That's why he forbade it. No sir, I am not going to be hired here because I did not want to lose my freedom. और उसने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा जॉब कोई नहीं करना चाहता हूँ जिसमें मेरी आज़ादी का हनन हो, तो मैं आपकी जॉब एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इन दिस वे हिज पावर वॉज टर्न्ड इनटू नथिंग, नॉट मीन्स नथिंग, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। और राजा अपने रथ में सवार होकर चला गया। सेकेंड स्टैंजा। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. So यहाँ पे दूसरा स्टंजा है। इसमें वो किससे जॉब ऑफर करने के लिए मांगता है, जॉब किससे मांगता है। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. So this was a month of summer season, and due to the heatness, sunstroke, every door was shut down. Nobody was being visible out there, but he was in the search of job. That's why he was moving here and there in the search of job. So in the mid of the day, he stood before shut doors. और घूमते घूमते उस दोपहरी में, गर्मी की दोपहरी में जॉब की तलाश में उदास था वह, और सारे दरवाजे, सारे घरों के दरवाजे बंद थे। I wandered along the crooked lane. Wandered means होता है moving here and there purposelessly, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना। So he was wandered, भटक रहा था, along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. Then suddenly he saw that there was an old man who was coming with a bag full of gold. He said, I will hire you with my money. Hey man, I wanted to hire you with my money. उसने कहा, तुम्हें जॉब चाहिए, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। I have a bag full of money. और मेरे पास ये बैग है, वो पूरा जो है पैसों से भरा हुआ है। आई विल हायर यू विथ मनी। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन। देन ही बिगिन टू काउंट हिज कॉइन्स वन बाई वन टू हायर दिस पर्सन हु वॉज इन द सर्च ऑफ जॉब, बट ही टर्न अवे। बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ दिस ओल्ड मैन बिकॉज ही वॉन्टेड टू बाय हिम विथ हिज मनी। और जब उस दोपहरी में, तपती दोपहरी में वह जो है जॉब की तलाश में गलियों में भटक रहा था, चारों तरफ दरवाजे बंद थे कमरों के, लेकिन उसी समय एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया जिसके पास एक सोने से भरा हुआ बैग था। उसने कहा, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ, मैं तुम्हें जॉब दे सकता हूँ। और उसके बाद यह कहने के बाद धीरे धीरे वह जो है अपने पैसों को, अपने गोल्ड को काउंट करने लगा। बट दिस मैन डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। लेकिन उस व्यक्ति ने उसका ऑफर स्वीकार नहीं किया, बिकॉज इन दिस ऑफर he has to sold himself and there was not any opportunity to enjoy the freedom. That's why he decided not to be purchased, not to be hired here, because there is no freedom. लेकिन यहाँ भी उसने मना कर दिया, क्योंकि उसने अपने आप को, जब अपने आप से पूछा तो उसकी आत्मा ने कहा, यह जॉब तुम्हारे लिए अति उत्तम नहीं है, क्योंकि इसमें आज़ादी नहीं है,
सोने से कोई चीज़ खरीदी जा सकती है लेकिन वहाँ पे कोई आज़ादी नहीं होती है। दैट्स वाई उसने अपना जो है उस व्यक्ति को मना कर दिया कि मैं यह ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, यह जॉब मैं नहीं करना चाहता। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। द किंग शॉर्ट सजेस्ट, किंग का जो शॉर्ट था वह क्या सजेस्ट कर रहा है? दिस वन इज शोइंग पावर। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वांटेड, क्यों स्वीकार नहीं किया किंग्स का ऑफर? क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द शॉर्ट नॉट? नॉट मीन्स एज आई टोल्ड यू नथिंग। वाई वर द हाउसेज शट? दरवाजे क्यों बंद थे? आपको मैंने बता दिया, ड्यू टू sunstroke. There was very hotness outside there. So these are the comprehension questions, and let us proceed next. यहाँ पे एक और प्रश्न पूछ रहा है, What did the speaker do when the old man weighed his coins one by one? He turned away. What will be answer? He turned away. Worksheet number 19. Same poem has been continued here. So these are the last two stanza of the poem. So let us discuss stanza number 3rd. Stanza number 3rd, last poem. So it was the evening, the garden was all a flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile fell and melted into tears, and she went back alone into the dark. बहुत अच्छी लाइन्स है ये. So the man was very hopeless. He was moving here and there in the search of the job. Then it was going to be evening. Then he sat down into a garden. और उदास होकर, थक कर, जब उसे कोई जॉब नहीं मिलता उसके मनपसंद का, तो वह जो है शाम को एक बगीचे में चला जाता है. द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर एंड देयर वॉज ब्लूमिंग एवरीवेयर. All the flowers were blooming and dancing everywhere. So the environment was very pleasant at that moment. The fair maid came out and said, then suddenly, जब वह उस बगीचे में उदास हताश होकर पहुंचा, कोई भी जॉब उसे नहीं मिली थी, चारों तरफ पुष्प खिले हुए थे. Then a fair maid, there was a beautiful young fairy came before him. और बहुत ही सुंदर एक युवती उसके सामने दिखाई दी. एंड शी सेड, आई विल हायर यू विद माई स्माइल. उसने कहा, मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ. आई विल हायर यू विथ माई स्माइल, पैसे से नहीं, नॉट विथ मनी, नॉट विथ पावर, बट आई विल हायर यू विथ माई स्माइल. उसने कहा, मैं तुम्हें पैसे से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि अपने मुस्कुराहट से हायर करना चाहती हूँ. दिस इज़ माई ऑफर टू यू. Her smile, I will hire you with my smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. And once again that man began to ponder. सोचने लगा, गहन विचार करने लगा, whether there is any freedom in this hiring. Then he decided, no, I am not going to be hired by the smile of this beautiful lady, because there is no freedom. और यहाँ भी जैसे उसने कहा, मैं अपनी मुस्कुराहट से तुम्हें हायर करना चाहती हूँ, तुम्हें अब जॉब पे रखना चाहती हूँ, तो वह सोचने लगा, गहन विचार मनन करने लगा कि क्या इसमें आज़ादी है. देन ही गॉट द कंक्लूजन दैट नो, देयर इज़ नॉट एनी फ्रीडम बाई हायरिंग विद ए स्माइल. किसी सुंदर युवती की सुंदरता के सम्मोहित होकर उसकी सुंदरता या उसकी स्माइल से अपने आप को बेच देना, यह उचित नहीं है, क्योंकि इसमें आज़ादी नहीं है. देन ही टर्न डाउन द ऑफर ऑफ दैट लेडी. इन दिस वे हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. और उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए. उस खूबसूरत मेड के आंखों में आंसू आ गया, फेरी की आंखों में आंसू आ गए.
और उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क एंड सडनली बाय बीपिंग एंड क्राई सी वेंट इनटू अलोन इनटू द डार्क, और रोते हुए वह जो है अंधेरे में चली गई। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्टैंजा एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर फोर्थ एंड फाइनल स्टैंजा। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक्सप्लेनेशन दिया है। सो लेट अस बी स्टार्ट स्टैंजा नंबर 4। The sun glistened on the sand, and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with sails. He raised his head and seemed to know me, and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain stuck into child's play made me a free man. So here, the man was very upset, very gloomed, and finally, by moving here and there, by wandering here and there, he came nearby a seashore where sun was directly flashing down on the sand and the sea waves were waywardly dancing. और जैसे वह समुद्र के किनारे पहुंचा, वहां भी वह उदास था, हताश था, क्योंकि उसे कोई हायर करने वाला नहीं था। सूर्य की तपती हुई धूप जो है रेत थी जो उस पर पड़ रही थी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, देन द वेव्स ऑफ द सी बिगिन टू ब्रोक वेवर्डली, बिगिन टू डांसिंग। अ चाइल्ड एट sat playing with sail. Then he saw that there was a small child who was playing with the sails. Sails means आप देखेंगे समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे जो सेल्स होती हैं, तो उसी से वह खेल रहा था। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद द सेल्स एंड ही वॉज एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर. ही रेज्ड हिज हेड एंड seemed to know me. As soon as he heard that someone is begging some job, he wanted to be hired. Then he raised his head and seemed to know me and said, and finally the small boy said, I hire you with nothing. और जैसे उसने सुना कि कोई अपने आप को हायर कराना चाहता है, अपने आप को जो है ऑफर करना चाहता है जॉब के लिए, तो उसने अपना सर उठाया जो कि खेल रहा था उस सेल्स से। उसने कहा, आई हायर यू विथ नथिंग, और कहा, मैं आई विल हायर यू विथ नथिंग, बट यू हैव टू शेयर विथ मी योर enjoyment. You have to play with me. In this way, you can share your happiness. You can do to make me happy. In this way, I am not able to give you anything. I have not money, I have not power, but I will give you pleasure. मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन हाँ, तुम मेरे साथ खेल सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो। एंड इन दिस वे आई कैन हायर विदाउट एनी पे, और मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। फ्रॉम देयर फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक, इस तरह से यह सौदा, बार्गेनिंग मीन्स होता है सौदा। इन दिस वे दिस बार्गेन वॉज सेटअप बिटवीन the man and the small child, and child's play made me a free man. In this way, this was the child's play and the beauty of the nature and innocence of the small baby, which made him free. That's why he decided, yes, there is freedom here in this job. I can be hired by this small baby because I have not any foundation. I am free totally here. That's why he accepted the proposal of that small baby. In this way, this bargaining was set up between the man and a small boy who was playing on the seashore. तो इस तरह से यह हमारा एक्सप्लेनेशन था पोएम का। और कुछ कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। What did the young maiden offer to her him with? उस यंग मेड ने क्या ऑफर किया? He wanted to buy him with her smile. Word at flower means covered with flowers. A flower means covered with flower. Speaker did not accept the maid's offer because वह क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है उस मेड के ऑफर को?
because he know that the emotion are not stable and that eventually her smile will fade away, क्योंकि वो समझता था कि यह सुंदरता परमानेंट नहीं है, यह जो है पल भर में समाप्त हो जाएगी. The word dark in the third stanza of the poem symbolizes hopeless and despair. तो यह हमारी पोएम थी और इस पोएम का जो सार है वह क्या है? कहने का मतलब यह है, यह पोएम हमें यह दिखाना चाहती है कि इस दुनिया में पैसे की कोई कीमत नहीं है. पैसा जो है कभी न कभी समाप्त हो जाएगा. गोल्ड की कोई कीमत नहीं है, सोने की कोई कीमत नहीं है. आज है कल नहीं रहेगा, वह समाप्त हो जाएगा. और जो स्माइल होती है, जो सुंदरता होती है, ब्यूटी होती है, वह भी समय के आगोश में आ जाती है. दिस वन कैन बी ऑल्सो फेडेड अवे बाय द टाइम. समय के साथ यह भी चली जाएगी सुंदरता. बट इनोसेंस ऑफ अ बेबी, innocence and beauty of the nature will be permanently survived here. That's why there is freedom. और उसे लगता है कि आज़ादी कहाँ है? बचपन में है, इनोसेंस में है और प्रकृति की गोद में है. इसीलिए उसने इस ऑफ़र को, उस बच्चे के ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था. बट देयर वॉज फ्रीडम. सो दिस वॉज द लास्ट बार्गेनिंग बिटवीन टू all the different person, but the bargaining was permanently settled among the boy and the man. So dear students, there are some comprehension questions given here, so you have to solve out each and everything, and you can share this worksheet by solving it into group. I hope you will do so. So this is the completion of the poem. I would like to say thank you for watching and giving your precious time. I hope you will be benefited from this explanation. Thank you very much once again.